Good morning, friends. This is Neeraj signing in from Jharkhand, Ranchi. Today, in Personality Development Program, we will be focusing on leadership attitude. What attitude leaders should possess to become a successful in every endeavor which he goes. Leadership attitude should not be mistaken by the political leaders. Of course, they possess these certain qualities. That's why they have become the leader. But देखा जाए तो दुनिया में तीन ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो who make things happen, वो लीडर होते हैं, जो कुछ काम करते हैं वो लीडर होते हैं। Those who follow with whatever happening, जो भी हो रहा है उसके साथ फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसे हम फॉलोअर कहते हैं। और तीसरे टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं कि आज क्या हुआ, हु आस्क्स व्हाट हैपेंड टुडे। ही इज नॉट ए लीडर, नॉट अ फॉलोअर, ही इज इंडिविजुअल stuck the different sufferings of human life. So if an individual wants to grow his personality, he should be able to cultivate this attitude to become a great leader, a successful life coach. So लीडर्स वर्तमान समय में बहुत आवश्यक हैं, जो अपने लाइफ को लीड कर सके, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाके, फिजिकल रियलिटी में जाके, जो इन एटीट्यूड्स को अपने पर्सनालिटी में इनकलकेट कर लेते हैं, उन्हें हम लीडर की श्रेणी में रखते हैं। और बाकी लोग फॉलोअर्स होते हैं, या उन्हें ये नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो पूछते हैं कि आज क्या हुआ। So leaders are not a person who comes from another planet or he is alien to us. He is knowingly or unknowingly possesses these qualities, and if you have registered for this course, you must know what is leadership attitude and how we can develop this qualities in ourselves so as to reach the pinnacle of success. So the definition of a leader goes like this. Hold for a second. The definition says a leader is one who never reacts but acts decisively. A leader possesses certain qualities. तो लीडर क्या है, वो कभी रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि वो डिसीजंस जो है डिसाइसिवली लेता है, सोच समझ के लेता है। वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को डिसर्न करता है। जो मैं आगे और एटीट्यूड्स है लीडर्स की उसमें मैं शेयर करूंगा। अभी इतना ही समझा जाए कि डेफिनेशन जो है वो कह रहा है कि अ लीडर इज वन हु नेवर रिएक्ट्स, हु रिस्पॉन्ड्स। There is a difference between reacting and responding. In reaction, you go with impulsive mind. Whatever other person says, you goes impulsively. If he gives you some tap on your back, you are ready to tap at back of him. You don't even care to respond, you react. In a communication presentation and speaking master class, I have told that we listen, we hear to give reply, not to understand. If you are a responsible person, if you know how to respond in a given situation, you should be familiar with this concept that response is something that आपने सुना, उसको समझा, कुछ क्षण बैक हुए
फिर आप अपनी तरफ से जो भी आपकी डिसीजन है वो आप आगे वाले को कन्वे कर सकें। तो इसके लिए उस पर्सन को कुछ क्वालिटीज हैं जिसको अवश्य अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट करना चाहिए ताकि वो लीडर बन सके, एक अच्छा लीडर बन सके, जो लीड कर सके। लीडर इज एन important person who sets the mission, vision for the entire generation. And if you have a pleasing personality, if you possess pleasing personality, success is there to embrace you. So kindly, you should inculcate these attitudes in your personality so that you can become a leader and you can set mission, vision for the entire generation. अब लीडर के पास और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एटीट्यूड्स होने चाहिए, अब मैं उसके विषय में आपसे बात कर रहा हूं। A person who has calm mind and clear focus. What does this sentence means? This sentence means वो ऐसा आदमी होता है जिसका दिमाग शांत रहता है और फोकस क्रिस्टल क्लियर रहता है। He is always clear on what he is doing, in terms of doing, in terms of work. He takes 100% responsibility for the decision he has taken. And one should have clear focus. एकदम क्रिस्टल क्लियर फोकस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। इफ और बट में नहीं उलझना है। केवल हम लोगों को इस एटीट्यूड को अपने पर्सनालिटी में इनकलकेट करना है। Who possesses confidence in what he is doing? अगर वो आपको ये दिखा रहा है कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास एक अदम्य साहस है, अदम्य नहीं अदम्य साहस है, साहस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हु इज क्रिएटिव? एंड डियर पार्टिसिपेंट, डू यू नो हु इज क्रिएटिव? क्रिएटिव कौन होता है? कौन व्यक्ति होता है जो क्रिएटिव होता है? वही व्यक्ति होता है, वही क्रिएटिव व्यक्ति होता है जो लीडर होता है। लीडर ही अपने मिशन विजन से एंटायर जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है और उस एग्जाम्पल को फॉलो करके लोग जो है सक्सेस के रियल्म पे जाते हैं। तो डोंट ट्राई टू बिकम अ फॉलोअर, ट्राई टू बिकम अ लीडर। और हु इज कमिटेड? जो कमिटेड होता है काम करने के लिए, उसे हम लीडर की श्रेणी में रखते हैं। अब आता है आपका कि लीडर जो है जिसमें 5 क्वालिटीज हों। ये 5 क्वालिटीज जो हैं मैंने पहले ही डेफिनेशन में बता दिया कि 5 C's क्या क्या हैं। A leader should possess these qualities that can be termed as 5 C's of a leader, that is calm mind, clear focus, confidence, क्रिएटिव भी होना चाहिए और कमिटेड भी होना चाहिए। अब आता है बात कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ मैनेजर। मेजर डिफरेंसेस जो है वो 5 है, 5 डिफरेंसेस है। इसको अगर समझ गए आप तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैनेजर तो हर एक जगह पे मिल जाएंगे। हु मैनेजेस? वन हु मैनेजेस द वर्क, and one who is leader, who is innovative, who sets the target for managers are called leaders. Leaders क्या करते हैं? वो एडमिनिस्टर करते हैं कि सब काम सही से हो, सब काम जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से हो। और लीडर क्या है? इनोवेट करता है, उसी काम को उसमें इनोवेशंस डालता है, अपने क्रिएटिव आइडियाज को डालता है। मैनेजर क्या है? वो वर्क को मेंटेन करता है और लीडर जो है वो वर्क को डेवलप करता है।
अब मैनेजर जो है किसी न किसी सिस्टम से रिलाई करता है, सिस्टम पे रिलाई करता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको मिलता है कि आप कैसे काम करें, मैनुअल होता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो वो क्या करता है, वो रिलाई करता है उस सिस्टम पर। लेकिन लीडर जो होता है वो रिलाई करता है पीपल पे। लीडर क्या होता है, डेलीगेट कर दिया, अब उसका काम है ये देखना, उससे फीडबैक लेना कि काम क्या हो रहा है या काम क्यों नहीं हो रहा है। तो वो रिलाई करता है पीपल पे और मैनेजर रिलाई करता है सिस्टम पे। मैनेजर जो है कंट्रोल्स पे, उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं उस पे रिलाई करता है। क्या क्या पावर, अगर वो किसी अच्छे पद पर है तो क्या क्या उसके पास पावर्स हैं, वो उस पे रिलाई करता है, उस पे बैक करता है। और लीडर वो होता है जो कि ट्रस्ट पे रिलाई करता है, एक विश्वास पे बात करता है। तो अब लीडर वो होता है जो ट्रस्ट पे विश्वास करता है। तो ट्रस्ट आप किस पे करोगे? ट्रस्ट आप उसी पे करोगे जिसको आप जज कर सकते हो कि यस, ही इज द कैपेबल पर्सन ऑफ डूइंग दिस वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर इज मैनेजर डज द राइट थिंग्स राइट। मैनेजर वो होता है जो सही काम करता है, लेकिन लीडर वो होता है जो सही ही काम करता है, उसमें गलत का स्कोप नहीं होता है। मैनेजर का क्या है कि स्कोप हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन लीडर का वो हमेशा सही चीज करता है। अब आता है कि लीडर्स को क्या क्या एटीट्यूड्स अपने पर्सनालिटी में इनकलकेट करना चाहिए। तो उसमें पहला एटीट्यूड है लिसनिंग का। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। पार्टिसिपेंट in the comment box kindly, if you know what is the difference between speaking, hearing and listening. I repeat, what is the difference between speaking, listening and hearing? Kindly, if you know the answers to this question, kindly feel free to comment on in the comment box that what I am saying, what I am trying to explain, you had got it crystal clearly. तो लिसनिंग का मतलब होता है द पावर टू विथड्रॉ। मीन्स आपको लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, हियरिंग नहीं। हियरिंग तो आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल दोगे। लिसनिंग का क्या होता है, आपने इस कान से सुना, माइंड में जो ये दोनों कान के बीच में जो जगह है वहां आपने उसको प्रोसेस किया, जस्ट लाइक सीपीयू इन कंप्यूटर। आफ्टर दैट यू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर प्रोसेसेस, जो भी आपने प्रोसेस किया है। तो डिसीजन जो है वो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड रहता है। उसके बाद एबिलिटी टू लिसन केयरफुली is a permanent way to survey and assess the situation tactfully. If you have the ability to listen, you can permanently access the situation tactfully. You can easily handle any kind of situation if you have one ability, that is listening ability. उसके बाद क्या है कि लिसनिंग क्वालिटी में है कि आप अपने अंदर चले जाते हो इनटू साइलेंस और समझने की कोशिश करते हो कि व्हाट द पर्सन इज सेइंग, और बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, नॉट रिएक्टिव। इन एनी सिचुएशन अ लीडर विल नॉट रिएक्ट, बट he will be an observer, that too is detached observer. What is detached observer? मान लो कि आप किसी के सिचुएशन, मान लो कि आपके फैमिली मेंबर्स में ही कोई बीमार है
और आप जुड़े हुए हैं उनसे, तो क्या आप डिटैच होके उनको संभालने की कोशिश करेंगे, या कोई बीमार है तो उसके साथ ओए आपको बीमारी हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, you are becoming a burden to that person whom you are trying to support. So kindly develop this skill to to become a detached observer. No one will go and say that अरे आप इनको संभालने आए हो और आप खुद ही इसमें गिर गए, उसी के सिचुएशन में आ गए हो, आप ही खुद बीमार पड़ गए हो तो दूसरे क्या संभालोगे? तो this is the first attitude a leader must possess. Second is availability. You as a leader should be physically, mentally, and emotionally be fully present in the present situation. And how you can come, or how you can present in the present situation, if you have an idea how to be aware in the present moment. मानव की यही दुविधा है कि वो कभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं रहता है। प्रेजेंट जो अभी बीत रहा है, जो क्षण अभी बीत रहा है, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आप लिसन कर रहे हैं या हियर कर रहे हैं, इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। इट इज योर बिजनेस दैट यू शुड पे द क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग taught here, because if you have taken the pain for registering in this course, then you should have an ability to make an effort also, कि जो बताया जा रहा है वो क्लियरली आपके दिमाग में बैठते जा रहा है, और धीरे धीरे टाइम के साथ ये कल्टीवेट होगा और एक बड़े पेड़ के रूप में आपकी पर्सनालिटी को निखारेगा, और जिससे आप अपने लाइफ को सक्सेसफुली आगे लीड कर सकते हो, नहीं तो जहां हो उसी में खुश रहो। अब लीडर शुड बी नॉट प्री कन्फाइंड विथ हिज ओन थॉट। आपको अपने थॉट में बिजी नहीं होना है। आप लीडर हो, एक जनरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज हैं सारे आपके ऊपर फोकस्ड हैं कि आपका एक डिसीजन उनको फर्श से अर्श पे ले जाएगा या अर्श से फर्श पे गिरा देगा। दिस यू हैव टू डिसाइड एज अ लीडर। अब आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। आपको डिसीजन भी लेनी है, तो आपका अगर माइंड क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में इतनी जगह जरूर होनी चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि आपका जो गोल है वो अलाइंड है आपके एक्शंस से। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट? दोस्तों, आप बाइक चलाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, आप 4 व्हीलर चलाते हो, 2 व्हीलर चलाते हो, 3 व्हीलर चलाते हो। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? गाड़ी तो आप बहुत दिन से चला रहे हो, बचपन से चला रहे होगे, मीन्स 10th के बाद चला रहे होगे या 7th से चला रहे होगे। लेकिन व्हाट इज द टर्म अलाइनमेंट हियर मीन्स? अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे आप कार को सर्विसिंग में ले जाते हो या बाइक को सर्विसिंग में ले जाते हो, तो वो सर्विस सेंटर वाले अलाइन करते हैं, मीन्स बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस ठीक रहेगा तो स्मूथ गाड़ी चलेगा, अगर बैलेंस गड़बड़ रहेगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी और आपको दिक्कत हमेशा होगी। अब आप अलाइंड हो कि नहीं हो, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। आप लोग सारे लोग 4 व्हीलर्स ड्राइव करते हो, ड्राइवर सीट पे बैठो, और अगर आप टिल्टेड हो, अगर आप ज्यादा एक्टिव हो,
या आप कंफर्टेबल हो। अब बैलेंस बनाने के लिए यू शुड हैव टू एडजस्ट योर पोस्चर अकॉर्डिंग टू द स्टीयरिंग व्हील। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। अगर आप बैलेंस्ड माइंड, बॉडी और स्पेस, माइंड, बॉडी, आत्मा से, माइंड, बॉडी और आत्मा में अगर अलाइनमेंट हो जाता है तो कोई भी चीज को पाना असंभव नहीं है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो जो भी अभी ब्लॉक्स है उसको आप ऐसा समझिए कि दिस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। कोई आप काम करने जा रहे हो, कोई आइडिया जनरेट है आपके दिमाग में, तो आप इसको माइलस्टोन की तरह समझो, या राह में पड़े हुए उस पत्थर की तरह समझो जो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको क्लाउड कर देता है, क्लाउडेड कर देता है। अब मैंने कहा था कि आप अलाइनमेंट में रहो, वो आप एक बैलेंस बना के रहो। अब बैलेंस बनाने का है तो until and unless you understand the theory of the reality, the power of now, the power of present moment, how to be aware in the present moment, अगर ये चीज आपको जाननी है तो आगे के क्लास में, आगे के सेशंस में मैं वो डीप सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जो भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं, जो भी मेरे साथ हैं, जिनको भी मैं सिखा रहा हूं, वो एक अलग डायमेंशन पे, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे अलग डायमेंशन में अपने को देख सके। और ये आप फील करोगे, रेडिकल चेंज आएगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो आपको रोम की तरह पेशेंटली किसी भी काम को करना है। तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेस चाहिए माइंड में। अगर आप स्पेस रखोगे तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो जाएगा और वो लॉजिकल हो जाएगा। इमोशनली किसी चीज का डिसीजन लेना, इट इज नॉट एवरी बडीज कप ऑफ टी। अब थर्ड जो है वो एटीट्यूड है कि आप टॉलरेंस, द पावर टू टॉलरेट। पावर ऑफ टॉलरेट का क्या मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और टॉलरेंस कितना है, मींस इनर स्ट्रेंथ टू विथ स्टैंड द इंटेंस सिचुएशन। क्या आपको बहुत गंभीर समस्या, गंभीर सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है तो आप में क्या वो इनर पावर है, उसको आपका इनर रेजिलियंस है कि आप उसको फेस कर सको। एबल टू एक्सेप्ट नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म विदाउट रिएक्टिंग और फीलिंग बर्डेड। आपके पास आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई फीडबैक नेगेटिव आ रहा है या कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको रिएक्शन न देना है और अपने आप को बर्डेंड नहीं समझना है कि अरे मैं तो नहीं कुछ कर पाऊंगा, मैं बेकार हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। लीडर वो होता है जो प्रेज और प्रेज ना होने के कारण, डिफेमेशन के, वो बियॉन्ड होता है। उसको अच्छे से कोई मतलब नहीं, खराब से कोई मतलब नहीं। गिव्स हिज बेस्ट राइट टू द एंड। अगर कोई काम वो शुरू करता है तो वो अंत तक अपना बेस्ट ही देता है। ये एक क्वालिटी है जो लीडर में अवश्य होनी चाहिए। तो आई होप आई हैव कवर्ड थर्ड लेवल तक तो मैं पहुंच गया, 3 एटीट्यूड्स क्या होते हैं। और उसके बाद आपका आता है
hold for a second. हाँ, flexibility, the power to adjust or accommodate. जैसे आप अगर विवाहित नहीं हैं तो आपको एकोमोडेशन के बारे में, आपको एडजस्टमेंट के बारे में प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपको इसका एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपको एडजस्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एडजस्टेबल ना हो और दूसरे से ये अपेक्षा कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एडजस्टेड हो, एडजस्टमेंट उसके साथ किसी तरह से हो। तो लीडर में ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि वो एडजस्ट करने के क्वालिटी उसमें हो, मीन्स एबल टू गिव वे, मानवता का टच होना चाहिए, और नए जॉब्स और असाइनमेंट्स के लिए वो एडेप्टेबिलिटी जो होनी चाहिए वो भी उसके पर्सनालिटी के तत्व के रूप में ये एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। अब सिक्स्थ है डिस्क्रिमिनेशन, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। इन कंप्यूटर देयर इज ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। एबल, ये एबिलिटी होनी चाहिए सही और गलत, ट्रुथ और फॉल्सहुड का, रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है, बेनिफिट क्या है और हार्म क्या है। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन की पावर जिसके पास रहता है वो ही लीडर, असल लीडर वही कहलाता है, वही एक नेतृत्व करता होता है। तो नेतृत्व करता सबके बस की बात नहीं है नेतृत्व करना। और ये लीडर जो होता है वो मैनेजर को मदद करता है एनालाइज करने में, किसी सिचुएशन को एनालाइज करने में, सिंथेसाइज करने में, प्रायोरिटी बनाने में, प्रायोरिटाइज करने के लिए, और वो जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिला है, जो भी वो इंफॉर्मेशन गैदर किया है, उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसे एसेस करने के लिए ये लीडर का खास गुण होता है। और डिसीजन मेकिंग, द पावर टू जज, ये भी एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लीडर को बनाने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड जो है ये लीडर का सबसे बड़ा हथियार है। वो जज कर सकता है कि विच ऑप्शन और सॉल्यूशन इज राइट। वो लेटिंग गो कर सकता है, ऐसा नहीं कि किसी चीज को पकड़ के बैठ गया, और उसमें जो भी रिफाइनमेंट और परफेक्शन लाने की जरूरत है वो डिसीजन से वो आराम से ले सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अनदर एटीट्यूड ऑफ लीडर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पावर टू फेस। रिस्पॉन्ड मीन्स आपने किसी की बात सुनी, समय लिया, सोचा, समझा, उसके बाद आपने आंसर दिया, तो उसे हम रिस्पॉन्ड कहते हैं। और रिएक्ट क्या है, उसने मुझे गाली दिया, स्लैंग वर्ड्स बोले, स्लेजिंग किया, मैंने भी उस स्लेजिंग कर दिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम। अगर कोई व्यक्ति जो है स्लेज कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसका उत्तर स्लेजिंग से ही दें, आप शांत से भी दे सकते हैं। शांति, द पावर ऑफ साइलेंस इज वन ऑफ द greatest tool which has given by God to human beings, but somehow or other we have forgotten this beautiful gift which is given by Almighty. तो ये क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करता है सिचुएशन को और रियलिटी को जैसा है वैसा ही देखता है, और अपने जो वो डिसीजन लेता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके रिजल्ट्स को फेस करने के लिए वो तैयार रहता है हमेशा।
लीडर जो होता है वो ट्रस्टवर्दी होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है, सीन एज ट्रस्टवर्दी, विश्वास पात्र होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। एट्थ एटीट्यूड ऑफ लीडर इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स कि आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थात आपको कोई भी काम करना है तो आपको कोऑपरेशन की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता। अब कोई डॉक्टर है, अगर उसने ऑर्थो में स्पेशलाइजेशन किया है तो वो कभी भी सर्जरी नहीं करेगा पेट का। सर्जरी वो जब भी करेगा हड्डी का करेगा। और जो जनरल फिजिशियन होते हैं वो कभी भी स्पेशलिटी को, जैसे कोई अगर मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो आपको बुखार की भी दवा देगा, वो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन भी करेगा। जानता सब कुछ है, लेकिन एक बाउंड्री बन गई है कि उसके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो गया है। अगर किसी का आप अधिकार क्षेत्र का हनन करेंगे तो महाभारत जैसी विभीषिका बनी होगी, जो कि आप जानते हैं। लीडर जो होते हैं वो पीपल ट्रस्ट वर्दी होते हैं, वो पीपल पे विश्वास करते हैं और वो हमेशा रिलाई करते हैं ट्रस्ट पर। एंड ही ऑलवेज डज द राइट थिंग। जब भी करते हैं सही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट्स, I hope I am clear till this point. If you have any questions, feel free to ask me in the chat box or the number given below. I am here to help you, and I am obliged that you are hearing these golden words. This is Neeraj, your productivity coach, signing out from Jharkhand, Ranchi. Thank you. Thank you.